آج کے دن کے لیے اس نے مجھے زور بخشا. ابلیس تو بہت سی کوششیں کرتا ہے لیکن جو اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ زور مار کر یہاں آ جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. آپ بھی ان پرستاروں میں ہیں, آپ بھی ان مقابلوں میں آپ پہنچے ہیں. اپنے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے. میں آپ کے لیے برکت کا باعث ہوں, آپ میرے لیے برکت کا باعث ہیں. خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اپنی برکتیں اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہمارے پاس کلام ہے, یہ وہ روشنی ہے جو ہم تک پہنچی ہے. ہم وہ برگزیدہ ہیں جنہوں نے کلام کو آج سننا ہے. ہم خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس کلام کو سننا ہے. ہماری راہیں, ہماری سانسیں, ہماری سوچیں, سب کچھ ہمارا نہیں ہوتا. جب ہم روح کے قبضہ میں ہوتے ہیں تب سوچیں بھی روح کی ہوتی ہیں, باتیں بھی روح کی ہوتی ہیں. ہمارا چلنا پھرنا, اڑنا بیٹھنا سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے. اگر روح کی ہدایت ہو تو کلام بھی ایسا نازل ہوگا, روح سے بھرا ہوا نازل ہوگا. کبھی کبھی ہمیں لگا کہ یہ کلام آج میرے لیے ہے. آج کہہ دیجیے خداوند آج کا کلام میرے لیے ہے, آج کا کلام میرے لیے ہے. یہ کلام دو دھاری تلوار سے کہیں زیادہ تیز ہے. یہ زندگیوں کو بدلتا ہے, یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. جب خداوند کا کلام آ جاتا ہے تو ابلیس کا تو یہاں پر ٹھکانہ نہیں رہتا, وہ تو بھاگ جاتا ہے. ہم نے یہی کرنا ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے جسے ابلیس کو آگ لگے. ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ کلام میں سناؤں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ چرچ میں آئیں, وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کا کلام سنیں, اس کی منہ کی باتیں سنیں. لیکن یہ سب کچھ تو روح چاہتا ہے. اگر ہم روحانی ہیں تو روح کے موافق چلیں گے, روح کے پھلوں سے بھرے ہوں گے. تو ابلیس کے پھلوں کی طرف نہیں جانا, روح کے پھلوں کی طرف ہی جانا. پریز دی لارڈ. روح کے لیے زوردار تالیاں. ہم اسی طرح کلام کی طرف بڑھیں گے. خداوند کے کلام میں آج جو حوالہ ہے احبار کی کتاب اور اس کا 21 باب اور اس کی 16 آیت سے 24 تک. ہاللیلویا. احبار کی کتاب, میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں, احبار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں صفحہ 114 پہ ہے اور اس کی 16 آیت اور اس کی 24 آیت تک میں پڑھوں گی. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, میں پڑھوں گی, آپ نے وہ آیت رپیٹ کرتے جانا ہے. پریز دی لارڈ. میں جو آیت بولوں گی وہ آپ نے بھی رپیٹ کرنی ہے. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزارنے کو نزدیک نہ آئے. خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے, خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا ہو یا وہ کبڑا ہو یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھجلی سے بھرا ہو یا اس کے بیڑیاں ہوں یا اس کے حصے پچکے ہوں. ہارون کی نسل میں کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشین قربانیاں گزارنے کو نزدیک نہ آئے. وہ عیب دار ہے, وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزارنے کو پاس نہ آئے. وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے, لیکن پردے کے اندر داخل نہ ہو, مذبح کے پاس آئے, اس لیے کہ وہ عیب دار ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے.
کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں. سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کی. آمین آمین. زوردار تالیاں. موسیٰ شریعت پرانا عہد نامہ خداوند موسیٰ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو خداوند کی میز میں نہ آئے, خداوند کی ہیکل میں نہ آئے. جو پرانے عہد نامہ میں ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایسے کون کون سے لوگ تھے جو ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. پرانا عہد نامہ بتا رہا ہے کہ وہ کون کون سے عیب دار لوگ تھے جو خداوند کی ہیکل کی تو کیا اس کے وہ باہر بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی اور خدا کے پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, خدا کی ہیکل کے اندر بیٹھ نہیں سکتے تھے. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ خدا کے مقام میں, خداوند کے ہیکل میں, اس کے پردے کو یا اس کی سٹنگ پہ کسی بھی جگہ پہ وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے, بلکہ ان کی انٹری اس پردے سے باہر تھی جو پاک ترین تھا, اس پردے کے باہر تھی. خداوند یہ سخت یہ قوانین تھے, خداوند یہ قانون نافذ کر دیا ہوا تھا کہ موسیٰ ان کو کہہ دے کہ جو کبڑا ہو, پچکا ہو, جو اندھا ہو, جو لنگڑا ہو, جس کی آنکھ میں خرابی ہو, جس کے گال پچکے ہوں, جو بونا ہو, یہ خداوند کی ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے. اتنے سخت قانون کے ساتھ خداوند نے ہارون کو اور موسیٰ کو ہدایت کی کہ موسیٰ ہارون کو یہ میرا پیغام دے دے. موسیٰ سے کہا کہ جا ہارون کی نسل کو یہ پیغام دے دے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کے عیب دار رکھتے ہیں وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور موسیٰ نے ہارون کو یہ پیغام دیا کہ ایسے لوگ خدا کی ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے. اتنی سختی, اتنا قانون. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیدائشی ہی ایسے پیدا ہوں, پیدائشی اندھے ہوں, جب وہ بڑے ہوئے ہوں گے تو جو خدا کے کاہن ہوں گے وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتے ہوں گے. بہت سی ایسی نسلیں جب پیدا ہوئی اور ان میں کچھ لنگڑے ہوں گے, جب ان کے ماں باپ نے ان کو اتنا دیکھا ہوگا کہ یہ چل نہیں سکتے تو ان کو ہیکل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے اندھے پیدا ہوئے ہوں گے, تب ایسے گال پچکے ہوں گے, ناک کی بیماریاں ہوں گی, کانوں کی بیماریاں ہوں گی, ہاتھوں کی, سکن کی, ناخنوں کی, اور اس کے علاوہ وہ ایسے بھانج پر ہوں گے جو چل نہیں سکتے ہوں گے, ایسے لنگڑے ہوں گے جو چل نہیں سکتے ہوں گے. ان کو خداوند کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے خاندان ہیں جو خدا کے کلام سے محروم ہوں گے. جب ایک گھر میں 4 بچی ہیں, ہو سکتا ہے کہ 2 بونے ہوں اور 2 کا قد لمبا ہو. 2 بونے تو اندر نہیں آ سکتے کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو تو اجازت نہیں. 2 خوش قسمت ہوں گے جن کی ہائٹ ہوگی وہ خدا کے گھر میں آ سکتے ہوں. ہو سکتا ہے 3 بہن بھائی ہوں, 1 لنگڑا ہو, 1 بونا ہو, 1 اندھا ہو, وہ تینوں ہی نہیں آ سکتے. خدا کے کلام کو وہ نہیں سن سکتے تھے, وہ ہیکل میں آ نہیں سکتے تھے. تب ایک ہیکل ہوتی تھی جہاں پہ سب لوگ عبادت کرتے تھے اور ہیکل میں آنا ضرور ہوتا تھا, لیکن ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی. وہ خدا کے کلام سے, اس کی باتوں سے, اس کی میٹھی آواز سے, زندگی بخش کلام سے محروم رہ گئے ہوں گے. اور خداوند کا بندہ موسیٰ جب اس کو یہ پیغام ملا تو وہ ہارون سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ اپنی قوم کو دے دے. جو بھی اس نقص کے ساتھ, اس عیب کے ساتھ پلے بڑے ہیں وہ ہیکل میں نہیں آ سکتے, ان کی انٹری منع ہے. ہو سکتا ہے وہ روتے ہوں کہ ہم نے ہیکل میں جانے, ماما ہمیں ساتھ لے کے جاؤ. تو ماں نے کہنا نہیں بیٹا تو لنگڑا ہے, تو ہیکل میں نہیں جا سکتا. اندھا ہو, وہ ماں کا دوپٹہ کھینچتا ہوگا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے, لیکن خدا کے قانون کو مانتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوگی. ایسا باپ جس کا بیٹا پچکا ہوگا یا جس کی آنکھوں میں پرابلم ہوگی اور وہ نہیں جا سکتا تھا ہیکل
हैकल में। खुदावन के कानून इतने सख्त थे कि इन बातों को मानना ज़रूर था। तब जो कौम थी हारून के साथ चल रही थी, जब उनको ये मैसेज मिला तो खुदावन के लोग जो है वो किस कदर परेशान हुए होंगे कि हमारे लिए दाखिला मना। एक लंगड़ा नहीं जा सकता, अंधा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, जिसके गाल पिचके वो नहीं जा सकता। जन्म के लंगड़े, जन्म के अंधे, पैदाइशी बीमारियों के साथ लोग जब पले भरे, उनको इजाजत नहीं हैकल में जाने की। हैकल का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया जाता था और उनको बाहर कहने के लिए कहा जाता कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये एक अज़ियत थी कि हम खुदावन के लोग हैं लेकिन उसके घर में जा नहीं सकते, हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाता है। मूसा ने जब हारून से कहा तो उन्होंने ये बातें अपनी रियाया से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से की। और लोगों के लिए ये मुश्किल था कि हम अपनी औलाद को, कुछ पेरेंट्स होंगे जो लंगड़े होंगे और उनके बच्चे ठीक होंगे और वो अपने माँ बाप को छोड़कर चर्च में जाती होंगी, हैकल में जाती होंगी। उनके लिए अज़ियत थी कि वो अपने इन ऐबों के साथ खुदा के पाक तरीन मकाम में, उसकी पाक हैकल में दाखिल नहीं हो सकते। आप मेरे साथ नए अहदनामे में आएंगे। खुदावन जब काम करता है जिंदगियों में तो कुछ ऐसा करता है जो हम नहीं सोच सकते, लेकिन वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है। नया अहदनामा में अमाल की किताब और उसका 3 बाब, सफ़ा 109, नए अहदनामा में अमाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगी। ये एक लंगड़े की कहानी है। जैसे आपने पुराने अहदनामे में सुना कि ऐसे लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, इसी तरह से एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा हवाला जिसमें ये लिखा है अमाल 3 बाब में, जिसमें पतरस और यूहन्ना का जिक्र है और एक लंगड़े का जिक्र है। पतरस और यूहन्ना खुदा के शागिर्द, खुदा की प्रीच करने वाले, खुदा के स्ट्रॉन्ग बंदे, मैं कह सकती हूँ कि वो काब थे जो खुदा के काम को सरंजाम दे रहे थे, वो हैकल में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर की और गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु नासरी, मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़ा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन, आमीन। पुराने अहदामा में हमने देखा कि लंगड़े अंदर नहीं आ सकते, गूंगे अंदर नहीं आ सकते, अंधे अंदर नहीं आ सकते, और वो जो ऐबदार लोग हैं जो जिनमें वो बीमारियां हैं वो हैकल में नहीं जा सकते। इधर भी ऐसे ही है, एक लंगड़ा है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। अभी तक उसको भी इजाज़त नहीं कि वो अंदर आ सके और वो भीख मांग रहा है। उसने बाहर बैठने के बनाया है कि मुझे मेरी रोजी रोटी भी चलती रहे, और वो भीख मांग रहा है और वो आते जाते सबसे भीख मांगता होगा। बताया गया है कि वो जन्म का लंगड़ा था
اس نے کبھی हैकल के अंदर नहीं जाके देखा होगा. हो सकता है उसकी उम्र 30 साल हो गई हो सकता है उसकी उम्र 40 साल हो गई हो सकता है वो 50 का हो गया हो, लेकिन वो अभी भी हैकल के बाहर है और वो भीख मांग रहा है ताकि उसको कोई हटाए ना कि यहाँ से उठ जा. वो बता रहे कि मैं लंगड़ा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीख मांग रहा है, और खुदावंद के बंदों से भी वो भीख मांग रहा है. पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा. जब खुदावंद अपने लोगों की तरफ देखता है तो जरूर है कि उनके लिए कोई बड़ा काम करता है. वो लंगड़े की एक खासियत है, वो इंतजार में था, इतने सालों से, और वो भीख मांग रहा था. उसके हाथों में वो बाउल था जिसके अंदर लोग उसको 2 रुपए 3 रुपए या कुछ ऐसे पैसे डाल देते होंगे जिससे वो अपने घर का गुजारा करता होगा. हो सकता है उसको घर वाले भी अपने घर में ना रखते हों और वो बाहर ही बैठा रहता था ताकि वो मांगे. वो भीख मांगने वाला लंगड़ा वो हैकल के बाहर बैठा रहता था. वो ऐबदार था और उसको इजाजत नहीं थी वो हैकल में आ सके, लेकिन मसीह यीशु नासरी ने उसकी जिंदगी में काम करना था. वो इंतजार कर रहा था सालों से, अपने खुदावंद का इंतजार कर रहा था. अगर वो इंतजार ना करता होता तो उसकी जिंदगी में आज ये मौजज़ा नहीं होता जो खुदावंद के लोगों ने उसको कहा. खुदावंद के कलाम में ये मरकूम है. पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की. हो सकता है कि उन्होंने जाते हुए उसको नजरअंदाज करना चाहा हो, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उन्होंने इस पर गौर से नजर की, गौर से उसको देखा. खुदावंद की नजर थी अपने लोगों पर, उस लंगड़े पर खुदा की नजर थी, तभी उसके बंदों ने उस पर नजर की, और जब उसको देखा तो गौर से देखा. हम कई दफा चीजों को देख के गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी हमें खास लगती हैं. हम उन्हें एक दफा नहीं 2 दफा गौर से देखकर गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या है. जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहे हैं और खुदा के जो खादम हैं वो देख रहे हैं और गौर से देखा. उन्होंने कलाम में साफ लिखा कि उन्होंने उस लंगड़े को गौर से देखा. इसका मतलब है हमें जिंदगी में चीजों को इग्नोर नहीं करना, उन्हें गौर करना है. आज क्योंकि उसके हिस्से में शिफा लिखी थी, इसीलिए उस पर जो शिफा का काम होना था वो जरूर था. खुदावंद के कलाम में लिखा कि पतरस ने कहा हमारी तरफ देख. हालेलुया. अब जब उन्होंने उस लंगड़े को देखा है तो फिर उन्होंने भी उससे कहा कि तू भी हमारी तरफ देख. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जब खुदावंद कहता है कि मेरी तरफ देख तो हमें भी खुदा की तरफ देखना पड़ता है. अब उस लंगड़े ने समझा कि शायद मेरी मदद करने के लिए इन्होंने मुझे पुकारा है, मेरी तरफ मुतवज्जा हुए हैं. उसकी आवाज की तरफ फौरन उसने ऐसे उनको देखा है. उन्होंने कहा हमारी तरफ देख. लंगड़े ने फौरन से ऐसे देखा है कि शायद ये मुझे कुछ देंगे. पतरस ने उस पर गौर की, उस पर नजर की और उसको गौर से देखा और उसके कहा कि हमारी तरफ देख. इसका मतलब है जिंदगियों में जरूरत है कि हमें जब कोई पुकारे या हमसे बात करे तो हम उसको गौर से सुनना. खास तौर पे जब हम खुदा के घर के बाहर हैं या घर के अंदर हैं, हम कहीं भी जब खुदा का कोई बंदा या खुदा का खादम हमें कुछ कह रहा है तो हमने उसकी आवाज को सुनना है. उस लंगड़े को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन उसको ये पता था कि इसने मुझे कहा है कि मेरी तरफ देख. वो अलर्ट हो गया. उसने कहा इन्होंने मुझे, खुदा के बंदों ने मुझे कहा है कि हमारी तरफ देख तो आज मेरे लिए कुछ करके जाएंगे. उसकी जो उम्मीद थी वो उसको पूरी होती हुई नजर आई. उसने उनकी तरफ देखा. ये नहीं कि वो भीख मांगता रहा, नहीं. जब खुदा के लोगों ने उसको कहा हमारी तरफ देख तो उसने उनकी तरफ देखा. प्रेज द लॉर्ड. उस लंगड़े ने, वो अंधा तो नहीं था ना, लेकिन उसने उनकी आवाज को सुना. इसका मतलब है वो सिर्फ लंगड़ा ही था, उसके कान भी सही थे, उसकी आंखें भी ठीक थी. उसने जब अपने कानों से पतरस की आवाज को सुना तो फिर पतरस का हमारी तरफ देख. हो सकता है पतरस कहता हो कि क्या पता ये लंगड़ा है तो ये गूंगा ना हो, इसलिए उसको आवाज दी हमारी तरफ देख. तो उनको वो कंफर्म हो गया कि ये बहरा नहीं है. फिर उसने कहा हमारी तरफ देख. अगला स्टेप शुरू हो गया. तो उस लंगड़े ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं देखना, उसने फौरन देखा, अलर्ट हो गया. इसका मतलब है वो सिर्फ एक लंगड़ा ही था, वो अंधा नहीं था, ना ही वो उसके गाल पिचके थे, ना ही वो बहरा था. उन्होंने
खादियों की आवाज को सुना, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाई, अलर्ट हो गया कि अब ये मेरे लिए कुछ करेंगे। उसकी उम्मीद जो थी उसे पूरी होती नजर आ रही थी कि अब ये मुझे पैसे देंगे, मैं भीख मांग रहा हूं तो मुझे आज ये कुछ दे के जाएंगे। खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। ये उसके लिए होना था काम, ये उम्मीद थी। उन शागिर्दों को पता था कि आज हमने इसको क्या दे के जाना है, इसकी जो बीमारी है हमने इससे मुक्त इसको करना है, इससे इसको आजाद करना है। जब उन्होंने देखा कि ये हमारी बातें सुन रहा है, हमारी तरफ अलर्ट हुआ है, हमारी तरफ इसके कान फिर गए हैं और ये हमारी तरफ गौर कर रहा है, तो पतरस ने देखा कि उसकी आंखों में क्या था कि शायद मुझे पैसे दे के जाएंगे। लेकिन पतरस ने कहा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, पतरस ने उसको कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूँ। मसीह यीशु के नाम से उठकर चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठकर चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बंदों ने उसको कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूँ। खुदावंद के खादमों के पास ऐसी शिफा थी, कहीं वो सोने चांदी से बढ़कर थी, जो उसकी जरूरत थी वो उनके पास थी। वो शिफा का काम शागिर्दों के पास था। उनको पता था कि इस लंगड़े को टांगों की जरूरत है, इसके टखने कमजोर हैं, इसके गोडे कमजोर हैं, इसकी टांगों के मसल नहीं है, ये चल फिर नहीं सकता। उसको जरूरत थी कि वो उठकर चल फिरे। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठकर चल फिर। ये ऑर्डर हो गया उसको कि उठ जा। तू जो बैठा है 40 सालों से, 38 सालों से, 50 सालों से, आज तेरा वक्त आ गया है कि तुझे खुदा ने ये रोशनी दे दी है, ये कुव्वत दे दी है कि तूने इस बीमारी से आजाद कर दिया है, कि आज तूने चलना फिरना है। आज उसके वेट का, उसके इंतजार का वक्त खत्म हो गया। और खुदावंद के खादमों ने कहा कि उठकर चल फिर। उसके टखनों में क्या आ गई? जिंदगी आ गई। उसी वक्त यीशु के नाम लेने से उस पे ताकत आ गई। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। हालेलुया। और वो कूद कर खड़ा हुआ। ऐसा नहीं था कि वो बैठा रहा, उसने कहा मैं ठीक हो गया, वो एकदम से खड़ा हो गया। उसके टखनों में, उसके पांव में ऐसी कुव्वत आ गई मसीह यीशु नासरी के नाम से कि वो एकदम से खड़ा हो गया और उसके अंदर जान आ गई। खुदावंद के कलाम में लिखा, उसके पांव और उसके टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां। कई सालों से जो हैकल के बाहर बैठा था, ऐबदार, लोग उसको ऐबदार बोलते होंगे, तू लंगड़ा है तो हैकल में नहीं जा सकता। आज जब वो दुआ करता होगा हैकल के बाहर बैठे, खुदाया मैं भीख भी मांगता हूँ क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ और मैं हैकल में नहीं जा सकता। और खुदावन ने उसके लिए क्या काम किया? खुदावन ने उसके लिए ये किया कि उसके टखनों पर, उसके पाँव को मजबूत कर दिया। और खुदा के बंदों ने उसको ऑर्डर किया कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक मौजज़ा होने वाला है, उठ यीशु मसीह नासरी के नाम से उठकर चल फिर। और वो फौरन खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लगा और कूदने लगा और वो शागिर्दों के साथ हैकल में चला गया। उसने पहला काम क्या किया? वो अपने घर नहीं गया, वो अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गया, लेकिन वो हैकल में गया। उसने हैकल को नहीं छोड़ा, उसने अपने शागिर्दों, खुदावंद के शागिर्दों का हुक्म माना और वो खड़ा हो गया। उसने उनकी तरफ देखा, उसकी आवाज को सुना, शागिर्दों का खुदावंद के नाम से उठ के चल फिर। वो उठ के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदने लगा। हो सकता है वो खुशी से नाचता हो। और खुदावंद के बंदों के साथ वो हैकल में गया। उसने सीधा ही हैकल के दरवाजे से अंदर गया और अंदर जाकर उसने खुदावंद की हम्द की। उसने खुदावंद की हम्द की। हालेलुया। उसने खुदावंद की हम्द की।
और वो हैकल में गया, उसने खुदा की हम्द की, उसने खुदा की तारीफ की, उसकी जिंदगी बदल गई थी। खुदा ने उसको वो मौका दिया, बीमारी से भी छुड़ाया और वो खुदा के कलाम से जो महरूम था वो महरूमी से भी बच गया। उसकी टांगें भी चलने लग पड़ी और उसके लिए खुदा ने रास्ता भी सीधा कर दिया कि जा, यीशु नासरी के नाम से अब तू हैकल में भी जा सकता है, हैकल में जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था दंग और हैरान हुए। हैरानी की बात ही तो है, हैरानी की बात ही थी। खुदावन के लोगों ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी ज़िंदगी में जो मौजज़ा हुआ था, तो लोग देखते ही हैं, हैरान ही होते हैं। ये लंगड़ा था, ये तो नाच रहा है, ये कूद रहा है, ये फिर रहा है, ये खुदा की इबादत कर रहा है। खुदावन उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि उसको उसकी महरूमी से भी आज़ाद किया। खुदा के कलाम को सुनने के लिए वो बेकरार होगा कि मैं न जाने कितने सालों से बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई हैकल में लेके नहीं गया। लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आना था, उसके साथ साथ उसको बहुत सी बरकतें भी मिल गई। वो अपनी बीमारी से भी अलग हुआ। जैसे ही उसको उस लंगड़ेपन से निजात मिली, वो खुशी, उसमें खुशी आ गई, ताजगी आ गई, वो खड़ा हो गया और खुदावंद के लोगों के साथ हैकल में चला गया, हम्द करने लगा। और जब कोई इंसान खुदा से दूर होता है, वो जब फौरन ही खुदावंद में इन हो जाता है, तो बड़े बड़े लोग जिसको पहले से जानते होते हैं कि बीमार शख्स था, बदरूह गिरफ्तार था, इसके पास ये नहीं था, इसके पास ये नहीं था, लेकिन जब वो खुदावंद में देखता हो, उसको देखते हैं, तो वह हैरान रहते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। खुदावंद ऐसे ही करता है, खुदावंद ऐसे ही हैरान कर देता है, क्योंकि जब मौजज़े होते हैं तो हैरानियां ही होती हैं। जब मौजज़े होते हैं तो लोग देखते ही रहते हैं। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का मौजज़ा इसकी जिंदगी में हुआ है और खुदावंद के लोगों के लिए ही खुदा करता है। उसको उम्मीद थी इतने सालों से कि मैं हैकल के बाहर बैठा हूँ, वो मायूस होगा कि सब लोग उसको दुत्कार कर चले जाते हैं, कभी कभी इसको भीख भी नहीं देते होंगे, चले जाते होंगे उसको छोड़ के, उसकी फैमिली इसको इग्नोर करती होगी। हो सकता है उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स ठीक हों, बस वही लंगड़ा हो। अगर वो घर के 7 लोग हैं और वो 8वां है, तो 7 लोगों ने बरकत पाई, लेकिन वो उस बरकत से महरूम रहा। अजीजों, ऐसे ही है, कई दफ़ा हमारे अजाब बुरे हैं, लेकिन अगर हम खुदा के घर नहीं आए तो हम लंगड़े हैं। अगर हम उसके कलाम को नहीं पढ़ा तो हम अंधे हैं। अगर हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते तो हम बहरे ही हैं, क्योंकि वो जिंदगी बख्श कलाम हमारी जिंदगियों में उतरा नहीं। क्योंकि मैं खुदावन से कहती हूँ, खुदावन मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं तेरे बगैर मुर्दा हूँ। आ मेरी आंखों को छू, आ मेरे कानों को छू, आ मेरी बॉडी को छू, मेरी रूह को छू। जब तक मेरा पैमाना, मेरा प्याला लबरेज नहीं हो जाता, मैं किसी को कैसे पैसे पानी पिला सकती हूँ, कैसे सैराब कर सकती हूँ। लेकिन जब खुदावन मुझे भर देता है, तभी वो उसका प्याला लबरेज होता वो मुझे नजर आता है। ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगियों में खुदावन से दूर होते हैं, हम उसके घर में नहीं आते तो हम उस लंगड़े की मानी थी। हमारी एंट्री हैकल में नहीं है तो हमारी टांगे नहीं है, हम उसके कलाम को नहीं पढ़ते तो हमारी आंखें नहीं हैं, मुर्दाएं हम, उसके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही खुदावन का बंदा पतरस और यूहन्ना उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि हमारी तरफ देख। तब वो उनकी तरफ देखता है, ये सिचुएशन है, इसको हैंडल करना है। वो देखते हैं, वो भी देखता है उनकी तरफ, वो अलर्ट हो जाता है। हमें भी ना ऐसे अलर्ट होने की ज़रूरत है। खुदा के खादम हमें कहते हैं ये कलाम है तो हमें सुनना है, अपने आप को एक्टिव करना है कि हमें ये कलाम सुनाया जा रहा है, हमें उस कलाम की तरफ रुजू लाना होता है। तब हमारी ज़िंदगी में मौजज़े होंगे, हमारी टांगें, हमारे पाँव, हमारे हाथ, हमारी हड्डियाँ, हमारा मसल, हमारी पूरी बॉडी काम करना शुरू कर देगी। हम भी वो करेंगे, हम भी हम्द करेंगे, हम भी खुदावंद के घर में आ जाएंगे, हम भी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे।
हमें ऐसे नहीं रहना। जब हम खुदा के करीब आ जाते हैं तो वो हमारे लिए मौजज़ात करता है, हमारे लिए नया काम करता है। रजूल आना है तो हमने उसकी तरफ देखना है, उसकी आवाज़ की तरफ अलर्ट होना है। जैसे ही खुदावंद ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ रजूल लाओ, तो हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम उसकी तरफ देखें, उसके कलाम को सुने, उसके कलाम को गौर से सुने, उसकी आवाज़ को गौर से सुने, तब हमारी जिंदगी में क्या होगा? मौजज़ा होगा। लंगड़े चलते हैं यीशु नासरी के नाम से, गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिंदे होता है। खुदावंद का कलाम बेशुमार खूबियों से भरा हुआ है और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हमारी जिंदगियों में जो ऐब हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, ऐसी ही बीमारियां जो ऐबदार हमारी जिंदगी में, और हम उन बीमारियों से लड़ नहीं सकते। हमें यीशु मसीह नासरी के नाम से ही उन्हें भगाना है। हम ऐसे नहीं रह सकते। जब हम खुदावंद के लोग हैं तो बीमारियों को छिड़क दीजिए, नफरतों को छिड़क दीजिए, इब्लीस